Hello, your teacher and your friend MK Mishra welcomes you in Nancy English Care channel with the new chapter Determiners. Please see the live video. Hello, friends. Today I am going to discuss the very important chapter that starts from class 9th, class 10th, class 11th, and particularly for all the competitive exams. And some part of this lesson is also very applicable for the junior classes. The name, as you know, that the name of the chapter is Determiners. Determiners, as the title you know, that this word defines a noun, and so determiners is an adjective. Dear friends, this chapter is so important because we have to use so many difficult words, particularly if you are appearing in the board exams and if you are preparing for the competitive exam. अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो कि 4 से 5 नंबर के सवाल इससे आने हैं, जिसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द टू पार्ट्स. फर्स्ट इज द आर्टिकल्स, दिस इज द पार्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स, एंड सेकंड दैट variety of determiners, like first is the article, then the demonstrative adjectives, the possessive adjectives, some numeral adjectives, some indefinite pronouns, and how these things are used. आप कैसे यूज करते हो ए एन और द. डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ए एन और द का यूज के लिए मैं एक सेपरेट बना चुका हूं वीडियो, उसे आप देख लें. जो इसी चैप्टर का पार्ट है उसको मैंने सेपरेट इसलिए किया बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर क्लास 6 टू क्लास 10th. तो उसको मैंने सेपरेट कर दिया. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो सम brief introduction of that article, and then how you use these, that, these, those, my, our, her, their, its, 1, 2, 3, some, many, any, little, a little, the little, few, the few, a few. बहुत ही छोटा सा फर्क. आप सोचेंगे कि लिटिल थोड़ा, a little क्या मतलब हो रहा है, द लिटिल, ये छोटा सा आर्टिकल उसके साथ लगा देने से क्या उसके मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है? तो एक्चुअली द आंसर विल बी यस. सचमुच चेंज हो जाता है और एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है. यदि मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए इसकी सूक्ष्मता को, कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. उसके रिकवरी के चांसेस नहीं के बराबर हैं. दूसरा सेंटेंस कहूँ, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मीन्स उसके रिकवरी के कुछ चांसेस हैं. तो लिटिल और अ लिटिल में फ़र्क आ गया. अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, और केवल लिटिल का मतलब कुछ नहीं, नहीं के बराबर. तो इस तरह जो एक यूज है जिसमें कि एक माइक्रो रूल्स हैं, उसको आपको समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर में, और उसको मैंने स्लाइड से आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है कि आप हर छोटे छोटे रूल को कैसे समझ पाएंगे. आप आइदर का यूज करते, नाइदर का यूज करते, मच का यूज करते, मैनी का यूज करते, सेवरल का यूज करते. तो हर छोटा छोटा शब्द, हर छोटे छोटे शब्द, हर छोटे छोटे वर्ड्स, हाउ टू यूज इट, that is very important, and these questions have been asked in the competitive exam and also in your board exam. If you are the student of class 10th, class 9th, class 11th, be ready that you have to achieve 4 marks from these 2 chapters. One is the article, that is separately I have made. अगर आपने आर्टिकल अभी तक नहीं देखा है तो उस आर्टिकल को देख लीजिए. और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जो डिटर्मिनर्स की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ. डियर फ्रेंड्स, I am going to appeal you if you have not subscribed my channel Nancy English Care, please press the bell, subscribe bell,
and so that you can get the notification of each and every new video, because in this channel all solution at one place, all the chapters of grammar and all the chapters of particularly class 9th and class 10th. So be the part of my channel and get everything, every solution at a one place. बहुत ही अच्छे से उसको समझाया गया है, चाहे वो ग्रामर के टेंस हो, नरेशन हो, उसको लाइव क्लास के रूप में समझाया गया है. एंड वंस इफ यू गो थ्रू दिस वीडियो, नो डाउट you have make your concept very clear. So dear friends, please subscribe my channel, share all the videos with your friends, with your well-wishers, and be ready for this particular chapter to go through all the smallest detail for your board exam, for your 9th 10th exam, and for your competitive exam. So come to the next slide. First of all, see the introduction. He wants to be a teacher. An apple a day keeps the doctor away. This laptop is very useful and confidential. Have you any money? There is some sugar in the pot. Here all the highlighted words a, an, the, this, any, some have been used before noun to define or determine them. आप प्रत्येक सेंटेंस को जब देख रहे हो तो जो हाईलाइटेड वर्ड है आप देख रहे हो, पहले में अ, टीचर नाउन के पहले आया है, एप्पल एन, भावेल के पहले एन का प्रयोग, डॉक्टर द, दिस लैपटॉप के पहले. अब जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे हैं ये सभी नाउन के पहले आया है, यानी इस वर्ड को देखने के बाद आपके दिमाग में कॉल होता है कि यह नाउन के ठीक पहले यूज होता है और ये नाउन को डिफाइन करता है. और जैसे ही कोई भी वर्ड नाउन को डिफाइन करता है तो हम तुरंत समझ लेते हैं कि नाउन की डिफाइन करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. सो दीज हाईलाइटेड वर्ड्स एक्चुअली आर द पार्ट ऑफ द डिटर्मिनर. ये हाईलाइटेड वर्ड डिटर्मिनर का पार्ट है जिसमें ए, एन और द, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया एक नई वीडियो के साथ जो आर्टिकल्स के नाम से जाना जाता है, तो आप उसको ठीक से समझेंगे. और उसके बाद दिस, एनी, सम और भी कई तमाम हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के अंतर्गत जो नाउन को डिफाइन करता है, नाउन को डिटरमिन करता है. एंड सो द चैप्टर इज डिटर्मिनर्स. दूसरे पर आइए, ऑल एंड सच आर कॉल्ड प्री डिटर्मिनर्स. What do you mean by predeterminers? Predeterminers का मतलब डिटर्मिनर के पहले इसका यूज होना. आप देख सकते हो, I have lost all the best books I had. तो द ऑलरेडी डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के पहले all का यूज हुआ. Everyone will love such a beautiful child. अब यहाँ देखिए, अ डिटर्मिनर है, आर्टिकल भी इसे कह सकते हैं. आप अच्छी तरह समझ लें कि आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है, लेकिन इसके पहले सच आया हुआ है. तो ऑल और सच दो ऐसे शब्द हैं जिसे हम प्री डिटर्मिनर के रूप में भी जानते हैं. तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपकी समझ में जो आया, आपको कोई पूछे कि डिटर्मिनर क्या है, तो डिटर्मिनर्स आर एक्चुअली द वर्ड्स व्हिच डिफाइन और डिटरमिन द नाउन एंड it has a function like an adjective. There are so many determiners we have to discuss in the next slide. Now come to the definition and types of determiner. See, determiners are those words that are prefixed before nouns to determine their meaning. अभी मैंने बताया कि प्रीफिक्स मतलब पहले आना. किसके पहले आना? नाउन के पहले आना. They can be divided into following types. मैं कुछ पार्ट्स में इसको 6 पार्ट में बांट कर इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. पहला पार्ट जो है आर्टिकल्स, दैट इज अ, एन एंड द. सी द वीडियो ऑफ द आर्टिकल्स फॉर डिटेल्स. तो आर्टिकल का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, प्लीज़ उसको देखें और उसके डिटेल्स को वहाँ से आप प्राप्त कर लें. सेकेंड, डेमोस्ट्रेटिव. दिस, दैट, दिज, दोज सभी एडजेक्टिव हैं, लेकिन इसे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. उसके बाद पॉजिटिव, किसी चीज़ का आप
के द्वारा पोजेज करना आपका अधिकार होना, जैसे माई, योर, आवर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये पॉसेसिव डिटर्मिनर्स हैं। उसके बाद इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित है। साफ देखिए, जब हम कहते हैं कि यू हैव सम मिल्क, तो ऑटोमेटिक कितना है आपको पता नहीं, इंडेफिनिट है। सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, ऑल, बोथ, आइदर, नेदर, ईच, एवरी, सेवरल। आप कहते हैं सेवरल मीन्स अनेक, एवरी प्रत्येक, तो निश्चित का पता नहीं चलता और इसलिए हमें इसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं और इसके यूज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अदर्स मैंने दे रखा है, जिसमें अदर, अनदर, एनाफ, मोस्ट, ये सारे डिटर्मिनर्स के प्रयोग होते हैं। और न्यूमरल्स हैं, जो भी एडजेक्टिव है 1, 2, 3, तो इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। आप इसी में न्यूमरल्स में फर्स्ट, सेकेंड, इसका भी यूज करते हैं। तो ये सभी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हैं और इसको समझने के लिए जो पहला पार्ट है आर्टिकल्स के लिए, आप प्लीज़ आर्टिकल्स का वीडियो देखें और बाकी एक एक डिटर्मिनर को समझने के लिए आप अगली स्लाइड को देखेंगे तो आप इसके जो डिटेल्स हैं, जो छोटे छोटे एक्सेप्शनल रूल्स हैं, उसको आप समझ पाएंगे। नाउ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, आर्टिकल। यहाँ ए, एन एंड द, जैसा हमने बताया कि इस पार्ट को आपको पढ़ने के लिए आर्टिकल्स के वीडियो में जाना पड़ेगा और उसमें आप सारे छोटे छोटे रूल्स को समझ पाएंगे। फिर भी मैं इस जगह पर छोटी सी चर्चा आपको कर देना चाहता हूँ इस स्लाइड में। द टू डिफिनिट आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर अ एंड एन। दो डिफिनिट आर्टिकल हैं जिसका नाम है अ और एन। द डिफिनिट आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज इज द। और वहीं इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिफिनिट आर्टिकल है जो किसी को निश्चित रूप से बताता है वो द है। अब मैं यूज ऑफ अ और यूज ऑफ एन, यूज ऑफ द की छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ। यूज ऑफ अ टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, इन प्लेसेस where the following words start with a consonant sound। यहाँ हम दो साउंड की बात करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। आर्टिकल चैप्टर में इसका डिटेल बताया गया है। तो जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड से कोई नाउन शुरू होता है तो उसके पहले हम अ आर्टिकल लगाते हैं। एंड इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अ वहीं लगेगा जब वो नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल माने जिसकी गिनती की जा सके, डिटर्मिनर अ इज यूज्ड। डिटर्मिनर एन इज यूज द फॉलोइंग स्टेंसेस। अब एन का प्रयोग कहाँ करोगे, तो वहाँ था कॉन्सोनेंट साउंड और यहाँ है वॉवेल साउंड। प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल साउंड अ, ई, आई, ओ, यू। याद रहे, यहाँ हम साउंड की बात कर रहे हैं, उस अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर साउंड उस तरह का हो, आपको समझना पड़ेगा वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में छोटा सा फ़र्क है कि वॉवेल साउंड आपके वोकल कॉर्ड से बिना एफर्ट लगाए डायरेक्ट निकलता, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड में आप अपने लिप्स का, अपने टीथ का, अपने पैलेट का, यानी आपके एक बड़ी एफर्ट से वो जो साउंड निकलता उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आ लगाइए और यहाँ वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आप एन लगाइए। डिटेल्स के लिए आप आर्टिकल से देखें। और तीसरा द इज मोस्टली यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। वहाँ अ और एन केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन में था, लेकिन द के लिए ये कंपल्सन नहीं है। द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग, यानी उसको पर्टिकुलरली वो स्पेसिफाई करता है कि आप उसकी जानकारी रखते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द हाउस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। मैं उस घर में जा रहा हूँ जहाँ मेरे फ्रेंड रहते हैं। तो यानी उस घर को के पहले, जो हाउस के पहले द लगाया, मतलब उस घर के विषय में आप जानते हैं। उस किसी व्यक्ति के विषय में, किसी प्लेस के विषय में, किसी थिंग के विषय में जब आप पहले से जानते हो तो आप मानेंगे कि आपने उसको स्पेसिफाई किया है और वहाँ द का प्रयोग होता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता। Now come to the second part, demonstrative determiners. The demonstrative determiners in English language are
दिस, दैट, दिज, दोज। थोड़ा सा इस चारों शब्दों का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझें कि दिस एक नियरनेस को शो करता है, दिस इज माई पेन, यानी वो पेन बिल्कुल आपके नियर है, आपके नज़दीक है। और जैसे आप कहते हैं दैट इज योर पेन, तो वो पेन आपके पास नहीं है बल्कि कुछ दूरी पर है। वैसे ही दिस का प्लूरल नंबर दिज और दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। तो दिस और दिज नियरनेस को शो करता है, एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, वहीं दैट सिंगुलर है, उसी का प्लूरल दोज है जो थोड़ी सी डिस्टेंस को शो करता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब उसके रूल्स में अगर जाएं तो पहला रूल्स है द डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर दोज इज यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ ए प्रीसीडिंग नाउन। सी विद द एग्जाम्पल, आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे ये रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करता है। माई शॉर्ट्स आर बेटर देन दोज ऑफ माई ब्रदर। मेरा शॉर्ट्स मतलब जो हाफ पैंट आप पहनते हो वो मेरे भाई के शॉर्ट से ज़्यादा अच्छा है। तो आप ऐसे लिखते कि माई शॉर्ट्स आर बेटर देन द शॉर्ट्स ऑफ माई ब्रदर, लेकिन द शॉर्ट्स इसका रिपीटेशन ना हो जाए, इसलिए द शॉर्ट्स ऑफ माई ब्रदर की जगह पर आपने लिख दिया दोज ऑफ माई ब्रदर। बस यही है कि प्रीसीडिंग नाउन का पहले आने वाले नाउन का रिपीटेशन ना हो। आवर डिफेंस एकेडमीज आर बेटर देन दोज ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ आवर डिफेंस एकेडमीज आर बेटर देन द डिफेंस एकेडमीज ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन दोबारा हमने डिफेंस एकेडमीज का रिपीटेशन नहीं किया, उसकी जगह पर दोज लिख दिया। दूसरा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, दिस एंड दिज पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट विच आर नियर, एंड व्हाइल दैट एंड दोज पॉइंट टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक नज़दीकी दूसरा दूरी। दिस एंड दैट टेक्स सिंगुलर नाउन, ये दोनों सिंगुलर है, while these and those takes plural noun and verbs। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बेशक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। दिस मैन इज, यहाँ कुछ छूटा हुआ लग रहा है, दिस मैन इज इन अ विलेज। तो यहाँ देखिए दिस मैन, ये मैन सिंगुलर है। दिस मैंगोज आर वेरी स्वीट, सॉरी दिस मैन इज अ विलेजर, नॉट विलेज, दिस मैन इज अ विलेजर, नथिंग रॉन्ग। तो वह आदमी या आदमी ग्रामीण है। दिज मैंगोज प्लूरल नंबर हो गया, आर वेरी स्वीट, वो आम बहुत ही मधुर हैं, मीठे हैं। दैट हॉर्स फिर सिंगुलर हो गया। रन्स, आप देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, रन्स फास्ट, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। एंड दोज गर्ल्स मस्ट बी रिवॉर्डेड, तो फिर गर्ल्स प्लूरल हो गया। गेट दैट डॉग आउट ऑफ द हाउस, थ्रो अवे दोज शूज इन द गैर्बेज। तो यहाँ फिर देखिए शूज प्लूरल है और यहाँ डॉग सिंगुलर है। तो एक नियरनेस को शो करता है, दूसरा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को शो करता है, और एक जो रूल्स आपने पढ़ा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए कि प्रीसीडिंग नाउन का रिपीटेशन ना हो। नाउ कम टू पॉसेसिव डिटर्मिनर्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। The possessives are used to show possession. They can be used before singular and plural noun as well as before uncountable noun. आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जब पोजेस करना, किसी पर आप अधिकार करते हो, तो आई के लिए माई का यूज, वी के साथ आवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स, दे के लिए दियर जैसे प्रोनाउंस के यूज होते हैं, और इसे हम पॉसेसिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उन लोगों का, ये। अब इसमें खासियत क्या है, दे कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल। आप इस एग्जाम्पल से समझोगे कि सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों में यूज होता है, एज वेल एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल के साथ तो होगा ही, अनकाउंटेबल के साथ भी। एग्जाम्पल समझिए, हिज माई अंकल, तो यहाँ देखिए हिज माई अंकल, मेरे अंकल है, सिंगुलर है। योर ऑनर इज द बेस्ट जज, अब यहाँ ऑनर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके पहले योर लिखें, आपका सम्मान सबसे बड़ा जज है, तो बिफोर अनकाउंटेबल नंबर हमने ब्रैकेट में लिखा है, इसका यूज किया गया है। योर नेवर इज ए रिच मैन, तो देखिए सॉरी आवर नेवर, हमारा पड़ोसी, तो यहाँ आवर का यूज किया गया सिंगुलर के लिए। योर डॉटर इज ब्यूटीफुल, डॉटर के पहले नाउन सिंगुलर नाउन है, योर का यूज किया गया। व्हाट इज हर एज,
एज के पहले, अब यहाँ एज जो है अनकाउंटेबल है। तो उसके पहले ह का यूज किया गया है। वेयर हैव यू लॉस्ट योर विट्स, कहाँ तुमने अपने बुद्धि को खो दी है। तो विट्स देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले योर का यूज हुआ है। व्हाट इज हिज नेम, फिर ये सिंगुलर नाउन है, इसके पहले हिज का यूज हुआ है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ वन के साथ वंस लगता है, जैसे आई के साथ माई, वी के साथ आवर, वैसे वन के साथ वंस लगता है जब हम अनिश्चित को बताते हैं कि हमें अपनी ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए। सबके लिए लागू होता है, इन जनरल की बात है। डू यू नो इट्स वैल्यू, तो आप देखिए इट्स शब्द का यूज हुआ है और वैल्यू अनकाउंटेबल है। फिर सी इज टेस्टिंग योर सिंसियरिटी, सिंसियरिटी अनकाउंटेबल है और योर का यूज हुआ। देयर हाउस, हाउस देखिए काउंटेबल है और यहाँ सिंगुलर है, देयर का यूज हुआ, देयर का। आवर बुक्स लाई स्कैटर्ड इन द रूम, यहाँ आवर बुक्स, बुक्स प्लूरल है और इसके साथ तो सिंगुलर के साथ यूज हुआ, प्लूरल के साथ यूज हुआ, काउंटेबल के साथ यूज हुआ, अनकाउंटेबल के साथ यूज हुआ। इस प्रकार आप पॉसिबल डिटरमिनर्स का यूज कर सकते हैं। दैट्स द वेरी इजी पार्ट, न्यूमरल एंड क्वांटिफायर्स। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत दिख रहा है, क्वांटिफायर में एन होगा। तो न्यूमरल्स जो नंबर बताता है, क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दे आर ऑर्डिनरी नंबर्स लाइक 1 2 3 4 से लेकर आप 100 तक गिन लो। दे शो हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर आर, कितना है उसकी गिनती, दे आर कॉल्ड न्यूमरल। जैसे देयर वर ओनली 10 बॉयज इन द क्लास, तो आपने 10 बॉयज की संख्या बताया, उसकी गिनती की। सी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स, तो 80 वर्षों की उसकी गिनती की। वहीं क्वांटिफायर्स दैट शो द क्वांटिटी लाइक सेवरल, अ लॉट ऑफ, बोथ, ऑल, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, एनफ, ये क्वांटिफायर्स हैं। क्वांटिफायर्स रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी की मात्रा बताने के लिए, किसी का अमाउंट बताने के लिए क्वांटिफायर्स का यूज होता है। एग्जाम्पल्स इसको समझने की कोशिश करिए। दे हैड एनफ गेस्ट ऑलरेडी, ये बहुत पहले से ही बहुत सारे गेस्ट हैं, सफिशिएंट गेस्ट हैं। तो यहाँ आपको निश्चित पता नहीं है, बस एक क्वांटिटी पता है, गिनती पता नहीं है। आई हैव फॉरगॉटन सम ऑफ द डिटेल्स, कुछ डिटेल्स मैंने भूल गए हैं। तो आप कितने डिटेल्स भूले इसकी गिनती पता आपको नहीं है, केवल एक सिंपल सा क्वांटिटी, थोड़ा ज़्यादा कुछ। प्लेंटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू हैव योर जॉब, तो प्लेंटी ऑफ पीपल में ढेर सारे लोग, कितने लोग पता नहीं, अनिश्चित है। ऑल चिल्ड्रन एंजॉयड द शो, कितने चिल्ड्रन नहीं पता, क्वांटिटी बता रहा है। देयर इज नो मिल्क इन द बॉटल, बोतल में कोई मिल्क नहीं है, ठीक है। नो, ये भी क्वांटिटी बता रहा है। देयर इज एनफ पाउडर इन द कैन, कैन में बहुत सारे पाउडर हैं, अब कितने हैं आपको मालूम नहीं, लेकिन सफिशिएंट मात्रा में है। ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, उसने बहुत सारा पानी पिया। सेवरल पीपल पेड हामिज टू हिम, बहुत सारे लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेवरल पीपल, अनेक लोग, सेवरल मीन्स मोर देन फ्यू। तो ये जो क्वांटिटी बतलाने वाले हैं, इसमें और भी वर्ड जुड़ सकते हैं। और दूसरा जो नंबर बताने वाले हैं वो 1 से लेकर आप 100 तक, और उससे भी ज़्यादा आप 1000 भी जोड़ सकते हैं। तो ये न्यूमरल और क्वांटिफायर्स के नाम से जाना जाता है। Now the most interesting slide, distributive determiner, each, every, either, neither। अब यहाँ each, every, either, neither का प्रयोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछना ही पूछना है। Each is used when we talk about the members of a group individually, that is definite। थोड़ा कंसेप्ट समझिए कि किसी एक जो ग्रुप का मेंबर है जिसमें कि 4 लोग हैं और 4 लोगों के विषय में अलग अलग कुछ आप बता रहे हैं, तो ये डिफिनिट रूप में जब बताते हैं तो वहाँ ईच का प्रयोग करते हैं। एंड एवरी व्हेन वी मेक ए जनरल स्टेटमेंट दैट इज इनडेफिनिट, कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप में एक जनरल स्टेटमेंट आपने दिया प्रत्येक के विषय में, उसमें इनडेफिनिट है, आप निश्चितता कुछ शो नहीं करते। बोथ आर फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और मज़ेदार बात, आप पहले सिंटैक्स नाम के चैप्टर में पढ़े हैं जो हमारे इस चैनल पर है, उसको देख लीजिएगा कि ईच और एवरी देखिए उसके साथ हमेशा, ऐसे हिंदी में प्रत्येक होता है लेकिन उसके साथ लगने वाला नाउन सिंगुलर होता है। जैसे ही मेट ईच गेस्ट, वह सभी अतिथि से मिला। तो सभी अतिथि मतलब अतिथि का एक ग्रुप था, मान लीजिए 5 लोग थे,
हमारे नाना जी, दादाजी, भैया और भाभी जी आए थे, तो आप चारों के विषय में अलग अलग बता रहे हैं, दैट इज डेफिनेट। द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरियाज। तो फ्लड अफेक्टेड एरियाज कोई एक नहीं होता, काफ़ी विशाल भूभाग होता, तो इन जनरल हर फ्लड अफेक्टेड एरिया में वो गए। आप निश्चित नहीं बता सकते हैं कहाँ गए, वो हेलीकॉप्टर से उड़ के देखे फ्लड अफेक्टेड एरिया को, कहीं देखे और कहीं नहीं भी देखे। आई एग्री विथ एवरी वर्ड ही सेज। मैं उसके हर शब्दों से सहमत हूँ। अब एक एक वर्ड के विषय में आपको निश्चित पता नहीं है, लेकिन उसने जो कहा उससे आप सहमत हैं। ईच रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड। हर रिक्वेस्ट को पर विचार किया जाएगा। तो हर रिक्वेस्ट का मतलब कि एक ग्रुप ने जितने रिक्वेस्ट किए उसके प्रत्येक रिक्वेस्ट पर विचार किया जाएगा, इस तरह का सेंस होता है। आइदर इज यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। आइदर दो को बताता है, बट यूजुअली इंडिकेट्स वन ऑफ द टू, बट ओनली वन ऑफ द टू, दो में से एक। और आइदर का एक दूसरा मतलब भी है, आइदर कैन ऑल्सो मीन बोथ साइड। आप एग्जाम्पल समझिए, पीपल स्टूड इन आइदर साइड ऑफ द रोड। यहाँ आइदर साइड का मतलब क्या हो गया कि लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े, तो ये इसका मतलब हो गया बोथ साइड, आइदर का मतलब। और दूसरा आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब दो लड़कियों में से एक, वन ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर, दो में से किसी एक को यहां आना चाहिए। सी कैन राइट विथ आइदर हैंड, और यहां फिर दोनों, वह दोनों ही हाथों में से, दोनों ही हाथ से लिख सकता है। तो एक तरफ दोनों हो जाता है और दूसरी तरफ दो में से एक, दो अर्थ में आइदर का प्रयोग किया गया है। और दूसरा जो एग्जाम्पल मैं देना जा रहा हूं, आइदर का जस्ट उल्टा नाइदर। नाइदर इज द नेगेटिव ऑफ आइदर, मीन्स नॉट एनी ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। जैसे आपने ऊपर में एग्जाम्पल देखा, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, इसकी जगह पर लिख सकते हैं नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, इसमें दोनों में से कोई नहीं। जैसे नाइदर बॉय सेड एनीथिंग, नाइदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, कोई भी किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा। Now the two important word is some and any. Some is used in affirmative sentence to express quantity. इसके पहले हमने quantifier बताया था। I will buy some good books. मैंने कुछ अच्छी किताबें खरीदे हैं। There are some children outside. ये दोनों ही quantity बता रहा है। Some is used in interrogative sentence when we expect yes answer. ऊपर में पढ़ रहे थे कि some is used in affirmative sentence, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है यदि हम उस क्वेश्चन में हाँ का आंसर की उम्मीद करते हैं। जैसे aren't some stamps in drawer, ड्रॉअर में कुछ स्टाम्प है ना, तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं, वो बोलेगा हाँ सर है। विल यू शो मी सम पेन्स, क्या आप मुझे कुछ कलम दिखाएंगे, तो आंसर आने वाला यस सर मैं दिखाऊंगा। इस तरह जब पूछते तो आप सम लगाते। एक एक्सेप्शन है कि ऐसे तो सम का प्रयोग हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी होता है, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है कि आपका आंसर यस ही आएगा। जैसे समझिए, डिडंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, क्या मैंने कल तुमको कुछ पैसे नहीं दिए थे, मतलब आप ये सुनना चाहते हैं हाँ सर दिए थे। तो नेगेटिव में भी आप एफर्मेटिव सुनना चाहते हैं तो वहां आप नेगेटिव का यूज सम के लिए कर सकते हैं। दूसरी तरफ एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, जस्ट सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आई डिडंट बाय एनी ब्रेड, मैंने कोई ब्रेड नहीं खरीदा। अगर आप लिखते कि मैंने ब्रेड खरीदा तो आप लिखते आई बॉट सम ब्रेड, मैंने कुछ ब्रेड खरीदा, लेकिन नहीं खरीदा तो आप एनी लगा दिए, सम नहीं लगाए। आई हैवंट एनी स्पेयर पेन, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कलम नहीं है। दूसरा फिर देखिए सम का ठीक उल्टा है, सम में आप हाँ आंसर क्यों सुनना चाहते थे। एनी इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू एक्सपेक्ट नेगेटिव आंसर। जैसे हैव यू एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो आंसर आप सुनना चाह रहे हैं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो अगर आप हाँ सुनना चाहते तो ऐसे बोलते हैव यू सम प्रॉब्लम, तो मतलब है कि आप कहना चाहे कुछ समस्या है, तो आप हाँ सुनना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ आप ना सुनना चाह रहे हैं। इज देयर एनी न्यूज, तो आंसर आप एक्सपेक्ट करते हैं नो सर देयर इज नो न्यूज। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आफ्टर हार्डली, स्कार्सली एंड इफ एनी इज यूज्ड। याद रखिए हार्डली और स्कार्सली दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है मुश्किल से।
देयर इज हार्डली एनी मिल्क इन द पॉट, मुश्किल से थोड़ा भी मिल्क पॉट में है। तो देखिए हार्डली के बाद आपने क्या लगाया, एनी। या हार्डली की जगह पर आप स्कार्सली का भी यूज कर सकते हो। इफ देर इज एनी डेंजर ब्लो द व्हिसिल, यदि कोई खतरा हो, देखिए इफ के साथ एनी डेंजर लगाया हुआ है, तो यदि कोई खतरे हो तो कृपया व्हिसिल बजा दो। तो हार्डली और स्कार्सली दोनों एक दूसरे का सिनोनिम शब्द है, उसके बाद एनी लगता है, और इफ क्लॉज में भी एनी का प्रयोग होता है। तो आप देखिए कि सम और एनी का प्रयोग बिल्कुल एक दूसरे के नेगेटिव सेंस में इसका यूज हो रहा है। नो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो परीक्षा में समझो आएगा ही आएगा। यदि आप अभी के बोर्ड एग्जाम में, जो पीसा पैटर्न का बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, इसको तो पूछा ही जाना है। देखिए बहुत ही स्लाइड्स ध्यान से समझोगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बहुत ही स्लाइड फर्क है। लिटिल मीन्स नॉट मच, नॉट मच मतलब हार्डली एनी, मुश्किल से थोड़ा सा। अ लिटिल मीन्स सम, दो नॉट मच। अ लिटिल का मतलब हुआ थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और हार्डली एनी मतलब मुश्किल से नहीं के बराबर। तो लिटिल का अर्थ समझ गए, अ लिटिल लगाने से थोड़ा सा उम्मीद बढ़ जाता है। द लिटिल डिनोट्स स्मॉल क्वांटिटी, द लिटिल का मतलब कि थोड़ा सा क्वांटिटी है। नॉट मच बट ऑल देयर इज, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना है सब कुछ। एंड लिटिल ऑलवेज टेक्स अनकाउंटेबल नाउन, याद रखिए लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लगता है। जब इसके आगे आप फ्यू पढ़ोगे उसके साथ काउंटेबल नाउन लगता है। आप एग्जाम्पल समझो, देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की उम्मीद हार्डली नहीं के बराबर है, केवल लिटिल लगा हुआ है। ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिम, उसने उसके प्रति बिल्कुल ही नहीं के बराबर चिंता दिखाई थी। लेकिन जैसे आप आ लगा देते हो, ही हैड ए लिटिल मिल्क मीन्स ही हैड सम मिल्क एटलीस्ट, थोड़ा सा दूध है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। और अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा सा अगर नॉलेज हो, ज़्यादा नहीं हो तो बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन जब लिटिल के पहले द लगा दे, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड मीन्स मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब लगा दिए, ज़्यादा नहीं थे लेकिन जो थे मैंने सब कर दिया। यू हैव ड्रिंक द लिटिल मिल्क इन द पॉट, पॉट में जितने दूध थे, ज़्यादा नहीं था लेकिन जितना था सब आप पी सकते हो। तो ये फ़र्क है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में। अब फ्यू में आइए, फ्यू मीन्स हार्डली एनी, वही है जो ऊपर में था लिटिल का मतलब। अ फ्यू मीन्स सम एटलीस्ट, वही मतलब है लेकिन पॉजिटिव सेंस में। एंड द फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम, मतलब दोनों का सेम है, फिर अलग अलग क्यों कर रहे हैं। तो याद रखिए फ्यू ऑलवेज टेक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, वहाँ था सिंगुलर काउंटेबल नाउन और यहाँ है प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर क्लास टुडे, फ्यू स्टूडेंट का मतलब हो गया हार्डली एनी, शायद कोई नहीं आया था या एक आध स्टूडेंट आया होगा। फ्यू वोमेन परहैप्स नन, शायद कोई नहीं, कैन कीप ए सीक्रेट, शायद ही कोई औरत हो जो रहस्य को रहस्य बना कर रख सके, मानी बिल्कुल नहीं के बराबर। दे स्टेड इन यूएसए अ फ्यू डेज, वह यूएसए में रुका था कुछ दिन के लिए। अ फ्यू मैन लेड अ पायस लाइफ, तो यहाँ अ फ्यू एंड ही गेव द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड, उसने वो सारे कपड़े दे दिए जो उसके पास थे। तो एक छोटा सा फर्क होता है, आपने देखा अ लिटिल, द लिटिल और फिर केवल लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू और केवल फ्यू में, एक में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरे में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दूसरे में प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ये एक बड़ा सा फर्क है। नाउ कम टू मच एंड मैनी। आप जानते हो सिंपल सा कंसेप्ट इसका, मच सोज क्वांटिटी, मैनी सोज नंबर। मच मीन्स अ लार्जर क्वांटिटी, मच का मतलब है ढेर सारी मात्रा में, एंड मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर, लार्ज संख्या में जिसकी गिनती कर सके। एक गिनती करने वाला, एक बिना गिनती करने वाला है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, दो शब्द याद रखिएगा। मच इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, व्हाइल मैनी इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैनी की आप गिनती कर सके हैं, कर पा रहे हैं, इसलिए काउंटेबल है, प्लूरल है, मच सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है।
Generally, much and many are used in negative sentences, but they are used, actually mostly used in affirmative with subject. Affirmative में भी यूज होगा, हमेशा affirmative में यूज होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए. जैसे आई हैवेंट मच मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं. इंट्रोगेटिव भी हमने यूज किया, हैव यू मच मनी. यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, हैवेंट यू मच मनी, क्या तेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है. लेकिन जब इसके साथ सब्जेक्ट आ जाता है, देखिए मैनी मैन विजिटेड टू सी हर, तो एफर्मेटिव सेंटेंस भी यूज हुआ, बहुत सारे लोग उसको मिलने के लिए आए थे. मच मिल्क वॉज वेस्टेड, बहुत सारा दूध बर्बाद हो गया था. देर आर मेनी फ्लावर्स, देखिए फ्लावर्स यहाँ सब्जेक्ट है, मैनी के साथ जुड़ा हुआ है. देर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन. देर इज मच शुगर इन स्टॉक, तो देखिए मच शुगर, शुगर अनकाउंटेबल, वहीं फ्लावर्स काउंटेबल प्लूरल हो गया, मच के साथ सिंगुलर हो गया, मच मिल्क सिंगुलर, मैनी मैन प्लूरल. तो ये आप काउंटेबल सिंगुलर और फिर काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल सिंगुलर जरूर याद रखेंगे. उसके बाद एक दूसरा है ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर इज यूज्ड विथ टू पर्सन्स और थिंग्स. अभी ईच हमने बताया था कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, यहाँ केवल दो के लिए ईच अदर का यूज करते हैं. एंड वन अनदर इज यूज मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. एग्जाम्पल क्लियर है, टू ब्रदर्स लाइक ईच अदर, दो भाइयों के बीच है, एक दूसरे को पसंद करते हैं. ईच अदर मतलब एक दूसरे को, दो में. लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर, छोटे बच्चे एक दूसरे को प्यार करते. तो यहाँ निश्चित नहीं है कितने छोटे बच्चे, सभी छोटे बच्चे एक दूसरे को प्यार करते. ये दो नहीं, बल्कि हम जनरल बात करते हैं, तो वहाँ वन अनदर का प्रयोग होता है. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था मच और मैनी में, ईच अदर और वन अनदर में. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्री वर्ड्स, ऑल, बोथ एंड होल. ऑल, बोथ एंड होल. ऑल शोज टोटल ऑफ मेनी यूनिट्स टुगेदर. बहुत सारे में से जो टोटल है उसके लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं एक साथ. While both denotes total of two units, both का हिंदी होता है दोनों, all मतलब होता है सभी, यानी बहुत सारे में से जो सभी हैं वो टोटल को एक साथ करते हैं, जबकि दोनों दो यूनिट में से जो दोनों को बताते हैं तो both का. whole denotes क्वांटिटी, होल जो है मात्रा बताता है, while all shows नंबर, वहीं all जो है नंबर बताता है, एज वेल एज क्वांटिटी, यानी ऑल में नंबर आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का यूज कर सकते हैं. वो क्वांटिटी भी बताता है और नंबर भी बताता है, जबकि होल केवल क्वांटिटी बताता है, वो नंबर नहीं बताता है. यानी होल को आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे. लेकिन एक मज़ेदार बात जो आपको सीखना है, द और पॉइसिव वर्ड. पॉइसिव वर्ड आप समझ गए, माई, आवर, देयर, इट्स, हिज, हर, ये पॉइसिव वर्ड अभी आपने पढ़ा. तो द या पॉइसिव वर्ड का यूज होता आफ्टर ऑल एंड बोथ. ऑल के बाद जैसे ऑल द बॉयज, वैसे बोथ के बाद या तो द का यूज करेंगे या फिर आप पॉइसिव वर्ड का यूज करेंगे. दूसरी तरफ व्हाइल द और पॉइसिव वर्ड इज यूज्ड बिफोर होल. अब देखिए थोड़ा फर्क क्या है, होल के पहले और ऑल और बोथ के बाद, बस ये छोटा सा फर्क है. ऑल और बोथ के बाद आप द या पॉइसिव वर्ड का यूज करेंगे, और होल के पहले एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए. ऑल आवर फ्रेंड्स आर हियर, तो ऑल के बाद आपने पॉइसिव वर्ड यूज किया आवर. बोथ हिज सिस्टर्स, तो आप देखिए बोथ के बाद आपने हिज का यूज किया पॉइसिव वर्ड का. ऑल द बॉयज, ऑल के बाद आपने द का यूज किया. ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट, सभी बच्चे यहाँ उपस्थित थे. ऑल माई बुक्स, ऑल के बाद आपने माई यूज किया. ऑल हर मिल्क, ऑल के बाद आपने, अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, ऑल जो है क्वांटिटी भी बतलाता है, तो यहाँ ऑल हर मिल्क, यहाँ ये क्वांटिटी बतला रहा है. वाज सोल्ड इन नो टाइम, कितना मिल्क, ये बात यहाँ स्पष्ट नहीं है. इस मिल्क की आप गिनती नहीं कर सकती, अनकाउंटेबल नाउन है. वहीं बुक्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है. बॉयज जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है. ठीक है. दे गॉट देयर होल शेयर, उसे अपना पूरा शेयर मिल गया. अब देखिए होल के पहले आपने दिया का यूज किया, यानी पॉइसिव वर्ड का यूज होल के पहले. और देखिए द होल क्लास वॉज आउट, होल के पहले आपने द का प्रयोग किया. तो मतलब साफ है कि ऑल और बोथ के बाद द और पॉइसिव वर्ड, और होल के ठीक पहले पॉइसिव वर्ड. नाउ कम टू लेटर, लेटेस्ट, लेटर,
लास्ट। अक्सर हम लोग इन शब्दों के प्रयोग में हमेशा कन्फ्यूजन में होते और समझ में नहीं आता कहाँ और कैसे प्रयोग करें। जैसे लेटर एंड लेटेस्ट रेफर्स टू टाइम। दूसरा शब्द लेटर डबल टी, एक में केवल टी दूसरे में डबल टी, और लास्ट रेफर्स टू ऑर्डर और पोजीशन। एक क्रम को बतलाता है, दूसरा टाइम को बतलाता है। ध्यान से समझिए, लास्ट इज द अपोजिट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का उल्टा लास्ट हो गया। एंड लेटेस्ट इज द अपोजिट ऑफ अर्लीस्ट, अर्लीस्ट बहुत पुराना और लेटेस्ट मतलब एकदम हाल का। तो ये कहते हैं व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, तो लेटेस्ट मतलब हमें लगता है ना कि सबसे देर वाला, देर वाला नहीं है, लेट का मतलब देर नहीं है, बल्कि ये अर्लीस्ट का अपोजिट है। लेटर इज द कंपैरेटिव ऑफ लेट, लेट मतलब देरी और लेटर मतलब उसके बाद वाला। बट लेटर जैसे डबल टी लग जाता है, इट इज द अपोजिट ऑफ फॉर्मर। एग्जाम्पल से आपके सामने क्लियर होगा। आई एम द लास्ट पर्सन टू बियर दिस इंसल्ट। तो देखिए लास्ट फर्स्ट का उल्टा है, मैं इस इंसल्ट को सहने वाला अंतिम व्यक्ति था। यू केम लेटर देन मी, तुम मेरे बाद आए थे। तो ये लेटर कंपैरेटिव डिग्री हो गया किसका, लेट का, यानी जितना लेट हुआ था मेरे से उससे तुम ज़्यादा लेट करके आए। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट हिम, लेटेस्ट का मतलब हो गया अर्लीस्ट का उल्टा, यानी सबसे ताज़ा। दिस इज द लेटर एडिशन ऑफ द बुक, ये बाद वाले बुक का एडिशन है। लेकिन दूसरा द लेटर पोर्शन ऑफ द बुक इज वेरी यूजफुल। लेटर पोर्शन मतलब हो गया, एक हुआ फॉर्मर मतलब पहले वाला, और लेटर मतलब वो सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो किताब का है वो बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद है अदर एंड द अदर। आफ्टर अदर प्लूरल नाउन इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अदर मीन्स एक्सेप्ट इफ वी यूज देन आफ्टर इट। इसको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। ही वॉज नो अदर देन अ थिप, इसका मतलब हुआ ही इज नथिंग एक्सेप्ट ए थिप, वो चोर को छोड़कर कुछ नहीं है, वो केवल चोर है। तो जब देन लगा देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। और दूसरा अदर पर्सन्स वेयर देयर, दूसरे लोग भी यहाँ थे। तो अदर के साथ प्लूरल नाउन, अदर पर्सन्स लगा, आप देख रहे हैं कि अदर के साथ प्लूरल नाउन लगता, और एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज आप नहीं कर सकते, अदर मतलब होता है दूसरा। लेकिन जब द अदर की बात करते हैं तो टू बॉयज वर रनिंग इन द स्ट्रीट, दो बच्चे गली में दौड़ रहे थे। वन वॉज डीफ एंड अदर वॉज डम, पहला डीफ था और दूसरा क्या था, गूंगा था। पहला बहरा था, दूसरा गूंगा था। तो मतलब हुआ कि द अदर में आप क्या यूज कर रहे हैं, दो के बीच, दो में से एक का, एक के विषय में बता रहे हैं, पहला ये और दूसरा वो। ये पूरा जो है आपका अंतिम डिटर्मिनर्स के महत्वपूर्ण शब्द हैं। Dear friends, I hope that you have already understood this chapter very clearly with the example. And if you have not subscribed my channel so far, please bell the subscribe button and share all the details to your friends. Thank you.